The Joint Convention Program of IPFT and National Federation for New State was organized at Dasrat Auditorium Hall in the capital on Saturday as per the date was provided. NFNS President Dr. Munish Tamang, General Secretary S. Sanyal, Vice President Nikman Chandra Marak, IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devarma and Minister Shukla Charan Nuatia were present in the program. The Joint Convention Program of IPFT and National Federation for New State was organized at Dasrat Auditorium Hall in the capital on Saturday as per the date was provided with the motto of One Nation, Many State, No Tripurale, No Rest. The President of NFNS, Dr. Munish Tamang, inaugurates the program by lighting the lamp. National Federation for New State General Secretary S. Sanyal, Vice President or Garo Hills Autonomous District Council Deputy CEM Nikman Chandra Marak, NFNS Sikkim member Sudip Pradhan, Vidarbha Rajya Adhadi Working President Neeraj Kandewale, NFNS former President or Supreme Court Senior Advocate P. Niroof Reddy and other members of NFNS were all present. Likewise, on behalf of IPFT, the IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devarma and Minister Shukla Charan Nuatia, Vice President Krishnakanta Jamatia, Spokesperson Advocate Amit Devarma, AGS Buddha Devarma and others were present in this convention program. IPFT State President Prem Kumar Riang, Secretary Sapan Devarma and Minister Shukla Charan Nuatia has delivered speech. Party IPFT National Federation for New State Luleway Shalchani Seminar Seminaro Paimanjo Peka Chiliwi National Federation for New State ने President Sri Prasanth Tamang जी, फिर लगे फाइल में फाइहा General Secretary Sri S. Sanyal जी, Senior Advocate तथा हमारी त्रिपुरा में 2019 जब कुंभलम में स्टेट लेवल स्टेट हुड डिमांड गैदरिंग हुए था उस समय भी हमारी सभी त्रिपुरावासी ट्राइबल जनजातियों को उनका अधिकार उनका भविष्य जो लड़ाई हो रहा है तो हमारी आदिवासी जनजातियों को और हमारी पार्टी को बहुत विश्वास के साथ हिम्मत दिए थे तो आज भी हमारी श्री नेहरू दीदी जी अभी स्टेज पर उपस्थित थे तो सारे लीडर्स हर स्टेट का जो स्टेट डिमांड में अभी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट में जुड़े हुए हर स्टेट के हमारे लीडर्स हो तो स्टेज पर आचमनाई श्री पार्टी ने श्री जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट तो श्री मिनिस्टर तथा पार्टी ने एसएस जनरल सेक्रेटरी तो IWFT प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो आदम जो यूड IPFT तो जो श्री एक्स MLA वाइस प्रेसिडेंट तो हाउस तो नहीं जो श्री लीडर्स तो श्री काकोबुको जो तो ना तेरी ने कॉन्फ्रेंस हो बस संसदी सेमिनार हो पहला निश्चित पाइथास जरावो चल डिसिप्लिन नारक लाये हासल संफा थांगनाली तोंगनाली समस्या आंगनाय हियाबा जरावो चल चेंगलाई माय लायलिया किसा लेट दें था हाइफनो जों नाके तोंगनाली बागै थांगमाय आरो तोंगनाली बागै बो जों व्यवस्था खायनाय आबानि बागै जों थांनानै उराउरि जाहाथे जोंनि आंथं
तो पहिला सिमी पाइथल जरावो और सालसाली सेमिनार न तो गोजांनि बिसिंथै जतो पांडानो फर्स्ट लास्ट खब जाके थाना बा केंद्रावनि थानि काबावमो तेज मास अफियो हमारी पार्टी आईपीएफटी 2009 4 तारीख मार्च पहले ये पार्टी का फाउंडेशन थे। आज से 14-15 साल हुआ तो एक दिन ये हमारी पार्टी त्रिपुरा का आंचलिक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी था। लेकिन जब 2021 में हमारे पास त्रिपुरा के महाराज श्रीमान प्रद्युत किशोर देव वर्मा जी उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड को लेके हमारे जनजातियों का जो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी हमारी जनजातियों का सोशल इकोनॉमिक कल्चर लैंग्वेज और हमारे आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल पावर को पाने के लिए जो सेपरेट स्टेट की डिमांड में था उसको ओवरकम करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम पर पार्टी को पूरा। On this day, at the convention program, one of the female folk singer has sang a beautiful folk song known as Jadu Kalija in the program. Likewise, the President of NFNS, Dr. Munish Tamang, Secretary S. Sanyal, Vice President Orgaru Hill Autonomous District Council, Deputy CEM Nikman Chandra Marak, and others also delivered their speech. National Federation of New States तैयार ही इसलिए हुआ है कि छोटे राज्यों की मांग करने वालों की मांग किस तरीके से सरकारी महकमे में पहुंचाया जाए, यानी कि दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य बनने का जो कार्य है वो दिल्ली में होता है, यहाँ नहीं। फेडरेशन में बोडोलैंड की इकाई है, गारोलैंड से हमारे निकमन मरक जी आए हैं, आप लोग तो हैं ही, साथ में हम विदर्भवादी भी हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, यहाँ तक कि आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि लद्दाख से भी लोगों की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, उसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लड़ रहा है। बाकी सब वक्ताओं के भाषण से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आया होगा कि छोटे राज्य की मांग ये दिल से जुड़ी हुई मांग है, ये हर एक इंसान के दिल की मांग है।
ये मांग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये मांग हर स्टेट के खुद के ऑटोनॉमी की मांग है। आप लोगों को इससे पहले के वक्ताओं ने यह समझाया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की तरफ से, NFNS की तरफ से मैं आज अपने इस भाषण में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट ही इसीलिए हुआ है, तैयार ही इसीलिए हुआ है कि स्टेट्स की पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स के डिमांड्स हो उसको लेके आगे चले। और इस राह में IPFT की जो डिमांड है सेपरेट त्रिपुरालैंड स्टेट की, वो NFNS के बड़े करीब की डिमांड है और उसको लेकर NFNS हमेशा तटस्थ रहा है और आगे चल के भी रहेगा। IPFT का जो पिछले कुछ सालों से जो उसकी जो चाल रही है उसको देखकर NFNS ने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक निरूप जी हैं, वो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आगे का मार्ग क्या होगा, वो हमेशा बताते रहते हैं और हम उनसे सीख लेते रहते हैं। उसी सीख के दौरान हम लोगों को इस बात की समझ आती है कि भारतवर्ष सरीके इस बड़े देश में 8-10 अगर नए राज्य तैयार हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है, जबकि हर राज्य का डिमांड करने वाला IPFT हो या गारोलैंड डिमांड करने वाले हो या मणिपुर में कुकीलैंड डिमांड करने वाले हो या बुंदेलखंड डिमांड करने वाले हो, सबकी मंशा यही है कि हमारा एक सेपरेट राज्य तैयार हो जाए जो हम हमारे तरीके से इसको चला सकें, कानून को ध्यान में रखते हुए। और ये डिमांड जो है, ये डिमांड हर क्वार्टर में आप देखेंगे, हर जगह से आप देखेंगे तो कानूनी तरीके से की जा रही है, किसी ने आज तक कानून हाथ में नहीं लिया है। और चूंकि ये कानूनन मांग है, हम आज यहाँ जो उपस्थित हैं लोग, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को और उसकी सारी इकाइयों को ये मकसद पूरा करने के लिए मदद करें। मदद इसलिए क्योंकि कोई भी काम बगैर एक दूसरे के मदद से होता नहीं है। 5 उंगली अगर अलग रखें तो सारे अलग हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। यही कोशिश नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स की रही है, आगे भी रहेगी। और मुझे यकीन है कि IPFT का साथ हमको हर समय मिलता रहेगा और हम IPFT के डिमांड को, त्रिपुरालैंड के डिमांड को सही समय पर सही जगह पहुंचा सकेंगे। ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये आगे समय आपको बताए, समय ही आप लोगों को सबको बताएगा। लेकिन एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, NS में हम छोटे राज्यों के डिमांड को लेकर प्रतिबद्ध हैं, रहेंगे और हम ये देखेंगे कि त्रिपुरालैंड में सूरज का उदय कब होता है। आप और हम दोनों मिलकर यहीं इसी जगह उस समय को भी याद करेंगे, इस समय को याद करेंगे और उस समय को सेलिब्रेट करेंगे।
इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। आगे और भी वक्ता हैं। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। अरे भारत एक है तो यहां के जो 51 शक्तिपीठ है इनके वजह से एक है। उनमें से एक शक्तिपीठ आपके पास है। क्या भारत आपका जो त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ है, इसके बगैर भारत का स्पिरिचुअल मैप, आध्यात्मिक जो नक्शा है, वो क्या कभी पूरा हो सकता है? इसी तरह अगर कोई शैवाइट है, उनके 13 जो ज्योतिर्लिंग है, उसके बगैर भारत नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई वैष्णव है तो 108 दिव्य देश है, उनके हिसाब से 108 दिव्य देश है वैष्णव के लिए, उसके बगैर भारत नहीं बनता। ये कोई लीडर नहीं बनाया भारत को, ये सिद्धपीठ, ये शक्तिपीठ, ये ज्योतिर्लिंग और ये दिव्य जो देश है, ये भारत को बनाया है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री अक्सर बोलते रहते हैं भारतवर्ष के बारे में, विष्णु पुराण को कोट करते हैं। अरे वो कोई कंसेप्ट है। इंडिया अभी नहीं बना, इंडिया बन रहा है। उसमें आपको और हमको दोनों को शामिल होना है। तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठना है, त्रिपुरा लैंड के साथ रहना है, गारो लैंड के साथ रहना है, बोडो लैंड के साथ रहना है। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो। देश कब मजबूत होगा? कब मजबूत होगा? वो स्लोगन को समझे, जब समझेंगे वन नेशन मेनी स्टेट्स। अंबेडकर 1947 में जब सेंटर को मजबूत बना रहे थे, वो खामोश बैठे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन 1957 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, भाषा आधार पर स्टेट्स बने, अंबेडकर ने क्या कहा? नो, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स। तेलंगाना जो बोली बोलता है, आंध्रा भी वही बोलता है, लेकिन एक भाषा के लिए 2 राज्य है। वन नेशन मेनी स्टेट्स, वन लैंग्वेज मेनी स्टेट्स, ये कंसेप्ट है। हालांकि हमने एनएफएनएस से नारा दिया था, इससे पहले किसी ने जिक्र किया कि ये जो है इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया। सही बात, किसने बनाया? किसका इंस्पिरेशन था? जैसे और किसी ने कहा अगर अमेरिका 50 स्टेट हो सकता है तो इंडिया 50 स्टेट क्यों नहीं हो सकता? अरे ये ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था, Why can't India be 100 states का, not 50? लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जब 2020 और 21 में जब कोविड आया, 3-4 किताब आए स्मॉल स्टेट्स पे। उसमें बहुत सारे लोग ये लिखा कि इंडिया में कोई भी स्टेट हो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं रहना चाहिए कोई भी स्टेट में। उत्तर प्रदेश का क्या आबादी है? 12 करोड़। 12 करोड़ का कोई स्टेट होता है? हमने देखा एमएलए एक दूसरे को कार्ड देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं पहचानते, विजिटिंग कार्ड देते हैं। मैं एमएलए हूं। अरे आप भी एमएलए हो, कहां बैठते हो? उसी सभा में बैठता है वो। 450 एमएलए, 250 एमएलसी। रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम में मैंने जजेस को कार्ड, एक दूसरे को कार्ड देते हुए देखा हूं। हम बैठे थे प्लेन 95 तक तो प्लेन ही नहीं होता था इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए, ट्रेन से जाना पड़ता था। ट्रेन वहीं हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वहां चीफ जस्टिस साहब दूसरे से पूछते थे आपका परिचय, उन्हीं के कोर्ट में जज है वो, लेकिन बैठता लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में 40 जज इलाहाबाद में बैठते तो 30 जज लखनऊ में बैठते, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। इस तरह का राज करोगे? जैसे हमारे नीरज भाई बोल रहे थे 900 किलोमीटर तेलंगाना आंध्रा को अलग कर दिया। उसमें कोई हमारे अलग होने के बाद क्या प्रॉब्लम से अलग बात है, लेकिन मैं ट्राइबल एरिया की बता रहा हूं। गोदावरी, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है, गोदावरी, और वहां पूरा ट्राइबल एरिया है। उसको ले जाके यहां पर कम से कम 60-70 गांव को ले जाके आंध्रा में मिला दिया। पहले जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 50 किलोमीटर होता था, आज जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। ट्राइबल 500 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर मुश्किल से जाता है, बस पकड़ के, ये पकड़ के, ऑटो पकड़ के, ये पकड़ के। 500 किलोमीटर कैसे जाएगा? अगर वहां बाढ़ आ जाए किसको बोलेगा? तो इस तरह के कई समस्या हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत सारे वक्ता हमसे पहले बोले हैं, बहुत कवर किया उन्होंने, लेकिन
एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर मैं बोल रहा हूं कि हम सब मिलके ये डिमांड करना चाहिए, स्टेट फॉर्मेशन का गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, एक परमानेंट, जैसे आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा के पूरा विभाजन किया स्टेट का, कंट्री देश का, उसी तरह एक परमानेंट कमीशन रहने दो। जब जिला बढ़ते हैं तो स्टेट्स क्यों नहीं बढ़ना? तो क्या देश से अलग होना चाहते हैं क्या वो लोग? देश में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा उनका अस्तित्व है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कायम कैसे होगा? अगर त्रिपुरा लैंड नहीं बनता, ये मान के चलो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा लैंड विल हैव नो आइडेंटिटी, क्योंकि आपका जमीन नहीं है। आपका जमीन में भी दूसरे लोग आके बैठेंगे, बाहर से आके बैठेंगे या देश के अंदर दूसरे इलाकों से आके बैठेंगे, आपका ना अस्तित्व रहेगा ना आइडेंटिटी रहेगा। So it's all politics of identity। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर गारोलैंड बनना है तो क्राइटेरिया क्या? अगर बोडोलैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया? त्रिपुरा लैंड बनना है तो क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया ही नहीं है। आपने 2002 में, जैसे नीरज ने कहा, जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट है वो बात सुनता है, नए स्टेट का डिमांड का बात सुनता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 1999 में बीजेपी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास किया कि हम तेलंगाना बनाएंगे। कब? 1999 में। लेकिन 2002 में जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, झारखंड बन रहा था और उत्तराखंड बन रहा था, तेलंगाना नहीं बना और क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं किया। ओके, तेलंगाना बन गया, किस क्राइटेरिया पे तेलंगाना बना? अगेन नो क्राइटेरिया। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पिछले महीने ये हियरिंग में आया है। मैं चाहूंगा मुनीष तामंग और काबिल सीनियर एडवोकेट हमारे साथ है आने विदर्भ के, ये लोग इस केस में शामिल होके, हम ऑलरेडी है उसमें। तेलंगाना बनने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि क्राइटेरिया फिक्स करो। 2002 में 2002 नहीं, 2000 में बना छत्तीसगढ़, 2002 में क्राइटेरिया नहीं फिक्स हुआ। तेलंगाना 2014 में क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पिछले हफ्ते हियरिंग में आया, उन्होंने कहा शायद कश्मीर मैटर में कुछ निकलेगा, तब तक रुक जाओ। हर एक के प्रॉब्लम्स है। किसी और ने कहा लद्दाख बन गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन वहां का प्रॉब्लम्स क्या है मालूम है? आज के दिन जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां के 4 एमएलए होते थे, 1 मिनिस्टर होता था, 1 एमपी होता था। आज के दिन नो एमपी, नो मिनिस्टर, नो एमएलए। किसके पास जाना भाई? गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में कोई घुस सकता है क्या? और 6000 करोड़ का बजट है, कैसा खर्च करेंगे? किस पे खर्च करेंगे? और वो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां का रीत रिवाज ही नहीं जानता वो लद्दाख का। लद्दाख में बसना, लद्दाख में एक दिन बिताना कोई मजाक की बात है क्या? टूरिस्ट बन के जाओ, एक दिन तो एक्लिमेटाइजेशन में जाएगा आपका, फिर कब समझोगे इसको, पैसे को कैसे खर्च करोगे? इसलिए वहां भी जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब आउटडेटेड हो गए। आज के दिन लद्दाख का लीडरशिप एक स्कूल टीचर के हाथ में गया, वांगचुक, पूरा नाम नहीं जानता मैं, पूरा नाम सोनम वांगचुक। अभी वो बर्फ पड़ रहा था और वो धरना पे बैठा, 20,000 लोग उसके साथ बैठे। दिल्ली आया, फिर उसी तरह का बीट, ये सब हो गया। लेकिन मैं 2-3 बात करके छोड़ देता हूं, बिकॉज ऐसे हम बात करते रह सकते हैं। जब त्रिपुरा का इलेक्शन हुआ तो हम इसको काफी नजदीकी से हमने इसको स्टडी किया, क्योंकि पहले जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था त्रिपुरा करके, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, त्रिपुरा मोता बना। आईपीएफटी वैसे ही है। हम चाह रहे थे कि अरे दोनों एक जगह होता तो ठीक होता, लेकिन जो भी हो, पॉलिटिक्स अपने हाथ में नहीं होता। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। जैसे सान्याल साहब इससे पहले बोल रहे थे, वहां भी हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बना। अभी तेलंगाना में भी हमारा प्रॉब्लम वही है। तेलंगाना हमको कोई घर बैठे लाके नहीं दिया, जरूर पार्लियामेंट में बना है, लेकिन जिस दिन एक हमाली
एक दिन 300 रुपया कमाता है एक सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो एक दिन में 3 लाख कमाता है। जब हम दोनों लोग एक आवाज में काम छोड़ के तेलंगाना के लिए मांग किया तो तब तेलंगाना बना। एक हमाली को और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को सड़क पे आके एक बनना पड़ा, एक आवाज उठाना पड़ा, तब चल के तेलंगाना बना। दूसरा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितना है, जब कांग्रेस पार्टी का आदमी, टीआरएस का आदमी, जितने प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर, लॉयर, हमाली, सब, और एक नक्सलवादी गद्दर। जब आपसे इससे पहले प्रलय जो अभी गा रहे थे, उनको देखने से मुझे गद्दर याद आया। 1 महीना भी नहीं हुआ, गद्दर गुजर गए, और उनका जो ऑपरेशन किए वो डॉक्टर भी यहीं बैठे हैं। जितना उनको, जिस दिन गद्दर गुजर गए, इस डॉक्टर को जो हजारों ऑपरेशन किए होंगे, मैंने कभी उनके सूरत पर दुख नहीं देखा, क्योंकि उनका प्रोफेशनल काम है। उनका 3 ब्लॉक थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, रिकवर हो गया। वो नर्सेस को पकड़ के हॉस्पिटल में, दूसरे पेशेंट्स को पकड़ के, डॉक्टरों को पकड़ के फिर गाना लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन ये काम किया, दूसरा दिन उनका लंग इन्फेक्शन हो गया, वो गुजर गए। कहने का मतलब यह है, एक नक्सलवाद को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी छोड़ के उनको भी जय तेलंगाना बोलना पड़ा। एक ही भाषा, कांग्रेस के हो, टीआरएस के हो, नक्सलवादी हो, कोई भी प्रोफेशन के हो, जय तेलंगाना, तब चल के तेलंगाना बना। ऐसे ही नहीं बना तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के कारण अलग होंगे। आपको सिर्फ तेलंगाना के 20 सीट पे आपका नजर था, इसलिए आपने तेलंगाना बना दिया। वो 20 नहीं, एक भी सीट नहीं आया। इसी तरह इससे पहले आप YouTube में, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपका हिस्सा इसलिए हूं, आप YouTube में जाके देखो, 2018 में हमने कुमलुक में जो स्पीच दिया, वो आज तक नहीं हटता YouTube से। माने उतने देखने वाले हैं। मुझे कभी कभी सुन के मुझे शर्म आता है, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को आसमान पे उठाया था उस स्पीच में। कभी कभी मुझे शर्म आता है, जितना उनसे हमने उम्मीद किया, उन्होंने वो उम्मीदें पूरा नहीं किया। जिस दिन मैं बात कर रहा था, कब था वो? 23 अगस्त 2018। पब्लिक का, तेलंगाना में पब्लिक का मूड मुझे मालूम था। तेलंगाना में 11 सीट है पार्लियामेंट के। असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2019 में। असेंबली में 1 सीट आया, पार्लियामेंट में 6 सीट आए। तो हम समझे ये आदमी जो है तगड़ा आदमी है, और ये देश के जितने भी मसले हैं वो पूरा जो है हल करेगा। लेकिन देश के मसले छोड़ के G20 के पीछे पड़ गए। मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गोवा में था, मैं बोल रहा हूं, हर एक गांव में गोवा का गांव क्या होता है इस देश जानता ही नहीं है। गोवा का गांव, मैं किसी प्रॉपर्टी खरीदने गया, उसका एक भी कागज के लिए मुझे गांव छोड़ना नहीं पड़ा। मैं पूछा, गांव इतना मजबूत कैसे है? उन्होंने कहा, अरे भाई 500 साल से है। गांव को वो लोग कमुदाद कहते हैं। कमुदाद इतना पावरफुल है कि हर एक डॉक्यूमेंट गांव में मिलता है। इससे पहले नीरज ने कहा गढ़चिरौली किधर, मुंबई किधर, लेकिन हम लोग हर एक लेवल पे, गांव के लेवल पे, स्टेट लेवल, जिस लेवल पे हम हैं, हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ये नव भारत के निर्माण के लिए लड़ना पड़ेगा। नव भारत निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे। उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए, वो क्राइटेरिया के लिए लड़ेंगे। एक बात कह के मैं छोड़ देता हूं, फॉरेस्ट एक्ट आया। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सब लोग एप्लीकेशन दे दिए, हमको कस्टमरी राइट है। तो एक गांव है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली है विदर्भ में, लेकिन हमको लग के है आदिलाबाद जो तेलंगाना का एरिया है। जैसे नीरज ने कहा, हमको छत्तीसगढ़ नजदीक है। आई एम टेलिंग यू, ब्रिटिश इंडिया में नागपुर का बेहतर कनेक्टिविटी था, और आज आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर। न प्लेन का कनेक्टिविटी, न ट्रेन का कनेक्टिविटी। कभी हम काम पे जाते हैं, अगर जबलपुर एयरपोर्ट अगर किसी कारण बंद है, तो नागपुर में उतर के 10-11 घंटा ट्रेन इससे जाना पड़ता है, कार से वहां।
हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मालूम। ये समझते कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में, और कैसे पहुंचेगा वहां अगर हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा तो। आदिलाबाद में कैपिटल, कौन सा जगह कैपिटल होना चाहिए, दो क्राइटेरिया है। अस्पताल के लिए कहां जाते हो और शादी का सामान खरीदने के लिए कहां जाते हो, जहां जाते हो वही आपका कैपिटल है। अगर नागपुर से आपको हैदराबाद नजदीक पड़ता है, वही कैपिटल है आपके लिए ना, बंबई नहीं है। सो इसी तरह मेंढालेखा गांव जो है वो एप्लीकेशन दिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उनको कस्टमरी राइट मिला। क्या राइट मिला? 5000 एकड़ का रिजर्व फॉरेस्ट मिला। पहला साल उन्होंने बंबू बिक्री किया तो 3 करोड़ आया गांव में। वो गांव में है कितने, 70 फैमिली है, 500 उनका आबादी है, दैट इज पॉपुलेशन 500 लोगों का। तो हम गए उस गांव में, और गांव के एंट्रेंस पे क्या लिखा है, मुंबई में हमारा सरकार, नहीं, दिल्ली में हमारा सरकार, मुंबई में हमारा सरकार, मेंढालेखा में हम सरकार। जिस दिन ये हर एक गांव में ये बात निकलेगी कि इस गांव में हम सरकार, जैसे गोवा के हर एक गांव में उनका सरकार है, मेंढालेखा में वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार है उनके गांव में। इस तरह का फीलिंग जब आएगा तभी हम एक नया भारत बना पाएंगे। मजबूत भारत बनना है। मैं जैसे कहा, भारत अभी नहीं बना। हम लोग कहते हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ओनली ए यूनियन ऑफ टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है। अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनना है तो सेंटर को और स्टेट को दोनों को जिम्मेदारी बांटना है। यू कांट डू बॉसिज्म फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का राज नहीं चलेगा। यहां का जो सत्ता है दो सेंटर्स पर टिकेगा, 2 पिलर पर टिकेगा। वो 2 पिलर है सेंटर और स्टेट। हमारे दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं। यूनियन लिस्ट आपका है, स्टेट लिस्ट हमारा है, और कंकरेंट लिस्ट दोनों का है। जब तक इंडिया फेडरल नहीं बनेगा, एक और बात कह के मैं छोड़ देता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आईपीएफटी बीते 2-3 साल में जो क्राइसिस के समय में था, वो क्राइसिस के घड़ी को आईपीएफटी ने पार कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी है, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस क्राइसिस के समय में हमें विश्वास था कि आईपीएफटी का जो लीडरशिप है, वो चाहे इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ क्यों ना हो, मगर वो फेथफुल हैंड्स में है, वो विश्वासी हाथ में है। और इनका जो, जैसे शुक्ला जी ने भी बताया कि इनका जो समर्पण है, एनसी देववर्मा साहब ने बताया था, इंस्पायर किया था कि अगर तुम लोग फेथफुली लगे रहोगे, विश्वास पूर्वक तुम लोग लगे रहोगे, विश्वास योग्य होकर लगे रहोगे, तो आज चाहे तुम्हें कम लगे, आज चाहे उतार का समय हो, मगर ऐसा समय आएगा जब तुम्हें सपोर्ट करने वाले फिर से बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे। एनसी देववर्मा साहब ने कहा, ये बहुत ही सत्य वचन उन्होंने कहा, सच वचन उन्होंने कहा। और आज उसी वचन में लगने के कारण आज देखिए आईपीएफटी का साथ देने के लिए केवल यहाँ त्रिपुरालैंड के लोग ही नहीं, परंतु आज हम इतने दूर दूर से, हैदराबाद से, विदर्भ से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से, आसाम से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। हम आपके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आए हैं, आपका मुद्दा के साथ और आपके पार्टी के साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में ये आईपीएफटी के द्वारा ही त्रिपुरालैंड का जो सपना है, त्रिपुरा लोगों का जो सपना है, वो आईपीएफटी के द्वारा, इस एबल लीडरशिप के द्वारा पूरा होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास करते हैं। हमने इसी विश्वास से व्यक्ति के ऊपर नहीं, परंतु आईपीएफटी के ऊपर विश्वास करने के कारण जब दार्जिलिंग में हमारा कन्वेंशन हुआ था आईपीएफटी एनएफएनएस का, तब एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने आईपीएफटी को दिया था, और शुक्ला जी को हमने, मिनिस्टर को हमने ट्रेजरर बनाया था। मगर बीते कुछ दिनों में ये उतार चढ़ाव का घड़ी तो ऐसे ही चलता रहता है। हर एक जीवन में भी कभी उतार चढ़ाव, अभी हम सुबह निकले धूप था, आगे तो इधर बारिश था, ऐसा चलता रहता है। तो इसमें घबराना नहीं हमको, डरना नहीं हमको, हिम्मत नहीं हारना है। बीते दिन में ये आईपीएफटी का नॉमिनी जिनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, उसने आईपीएफटी छोड़ दिया, आईपीएफटी के साथ वो नहीं रहे। इसलिए हमने डिसाइड किया है, और आपके साथ ये खुशखबरी मैं शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने
जो आईपीएफटी का जो वेकेंट पोजीशन था, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट निकमान मराक जी हैं जो गारोलैंड के सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, और एक दूसरा पोजीशन जो वेकेंट पोजीशन था, हमने उसमें डिसाइड किया है कि हमारे शुक्लाचरण नेहता जी को हम लोग एनएफएनएस का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करेंगे। ये हमारा उनके ऊपर जो विश्वास है, उनके ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है, इस बात का ये सिंबल है। और हमें पूरा विश्वास है कि शुक्लाचरण नेहता जी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएफटी में, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में, एनएफएनएस में और हमारे साथ भी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे जिम्मेदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। उनके साथ साथ ये हमारे जो लीडरशिप में इस समय है आईपीएफटी में, प्रेम कुमार रियांग जी और अन्य हमारे साथी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब हमारे पुराने साथी लोग हैं और हम सबको हमने देखा हुआ नज़दीक से। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के एबल लीडरशिप में आईपीएफटी बहुत उन्नति तरक्की करता जाएगा। जब पिछले इलेक्शन जब हुआ था तब निरुप जी यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में। वो चाहते थे कि यहाँ एक तो इलेक्शन को थोड़ा स्टडी करें, नज़दीक से देखें, दूसरा साथी से मिलना चाहते हैं। आके उन्होंने उस समय शुक्ला जी को खूब फ़ोन किया, मैंने नंबर दिया था उनको, बोला था आप शुक्ला जी से मिलिए, मगर उस समय आप कैंपेन के टाइम में बिजी थे, वो मिल नहीं पाए। मुलाकात शुक्ला जी कहीं रिमोट एरिया में कैंपेन कर रहे थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया और शुक्ला जी ने फ़ोन किया और शुक्ला जी ने बताया हमें कि हम जीत गए, हम एमएलए बन गए और शुक्ला जी भी आ गए। कितनी अच्छी बात है, आप ये कहानी सुना रहा था। तो शुक्ला जी से पता चला कि वो एमएलए सीट जीत गए। आपको याद होगा शुक्ला जी, मैंने कहा था उसी शाम को, शुक्ला जी आप मंत्री बन जाएंगे, और अगले दिन शुक्ला जी का फोन आ गया फिर कि हम कैबिनेट मंत्री बन गए करके। उसी प्रकार से आज हम आपको कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी आईपीएफटी के लीडरशिप में, प्रेम कुमार रियांग के लीडरशिप में, शुक्ला नेहता के लीडरशिप में और आईपीएफटी के संपूर्ण लीडरशिप के में, ये त्रिपुरा लैंड का सपना भी जरूर पूरा होगा। मैं आज आपसे आपको कहना चाहता हूं, आज हम यहाँ दोनों चीज को सपोर्ट करने आए हैं। त्रिपुरा लैंड के मुद्दा को सपोर्ट करने आए हैं और आईपीएफटी को भी हमारा एज एनएफएनएस का पार्टनर के रूप में हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। और हमारा ऑल इंडिया का सॉलिडारिटी हम आपके साथ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, सभी उतार चढ़ाव में, सभी समय में आप लोग हमारे साथ रहे हैं और यही हमारा पार्टनरशिप कायम रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसे प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा, ये हम भी अपने आप को फेडरेशन कहते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स अ फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। वी आर हियर इन अ वेरी फेडरल स्पिरिट। वी सपोर्ट ईच अदर इन अ फेडरल स्पिरिट। वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज इन अ फेडरल स्पिरिट। और हम भी आज यहाँ पर फेडरल स्पिरिट में आए हैं। आप भी फेडरल स्पिरिट में कर्नाटका से आए हैं, निरुप गारू भी आए हैं, विदर्भ से भी आए हैं, सभी जगह से हम लोग आए हैं। हमारा अपना अपना मुद्दा है, बट वी आर अ फेडरेशन, वी आर अ नेशनल फेडरेशन। तो इसी फेडरेशन में इक्वल पार्टनरशिप के भावना में, बराबरी का पार्टनरशिप, ये तो हमको ऐसी जिम्मेदारी में किसी को प्रेसिडेंट, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी ऐसा नाम दिया है, मगर हम सब बराबर के हैं, हम सब बराबर पार्टनरशिप में हैं। और इसी बराबर के पार्टनरशिप में कंधे से कंधा मिलाकर जितना हम गोरखालैंड के लिए हम जितना कंसर्न है, गोरखालैंड हमें जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय हमारे लिए त्रिपुरा लैंड भी है। और वैसे ही हम भी मानते हैं कि जैसे आपके लिए त्रिपुरा लैंड प्रिय है, वैसे ही आपके लिए गोरखालैंड भी उतना ही प्रिय है। हमारे लिए गारोलैंड, विदर्भ सब हमारे लिए प्रिय है। आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं आ पाए, बुंदेलखंड से नहीं आ पाए, हमारे लद्दाख से नहीं आ पाए, और बोडोलैंड के साथी हमारे आ रहे हैं, मगर चाहे वो आए ना आए, सभी ने सॉलिडारिटी का मैसेज आपको भेजा है और हम भी यहाँ से सॉलिडारिटी का मैसेज सबके लिए भेजते हैं। इंडिया में जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हम एनएफएनएस के इस मंच से सॉलिडारिटी डिक्लेयर करते हैं। उन सब के लिए हम सॉलिडारिटी बताते हैं, क्योंकि जैसे प्रोफेसर राधाकृष्ण ने कहा, भारत माता अपने बच्चों में ही रहती है, भारत माता अपने प्रजा में ही रहती है। और जब तक प्रजा मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत माता मजबूत नहीं होगी। अगर प्रजा कमजोर है, प्रजा गरीब है, प्रजा दुखी है, तो भारत माता भी दुखी रहेगी। हमारे इस देश में हम देखते हैं कि हमारा देश बड़ा तीव्रता से अपने आप को एक सुपर पावर, ताकत बनाने में लगा हुआ है, मगर हमारा संदेश यही है, जब तक इंडिया का लास्ट आदमी कमजोर है, तब तक इंडिया भी
कमजोर रहेगा। जब तक इंडिया का लास्ट प्रांत कमजोर है तब तक इंडिया कमजोर रहेगा। इंडिया को अगर ताकतवर बनना है तो इंडिया का हर एक आदमी, हर एक प्रांत, हर एक राज्य और हर एक आइडेंटिटी को मजबूत होना होगा, तभी इंडिया भी प्रॉस्पर करेगा। जब तक सब लोग प्रॉस्पर नहीं करेंगे तब इंडिया प्रॉस्पर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें सभी का मजबूती ही देश का मजबूती है। इसमें सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। इससे हम चाहते हैं, हम देश को यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर में हम सभी को मजबूत होना है। हमारा नारा है वन नेशन। हम मानते हैं एक देश है, हम मानते हैं कि भारत की अखंडता को हम पूरा विश्वास करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि नया राज्य बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि नया राज्य बन सकता है और हमें पता है कि एक नया राज्य का मांग हमारा जायज मांग है, जेन्युइन मांग है, लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, बिल्कुल ठीक मांग है। इस चीज को हम जानते हैं। हम एक देश को मानते हैं मगर एक देश में मेनी स्टेट्स को मानते हैं। हमारा नारा है वन नेशन मेनी स्टेट्स, क्योंकि सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन से ही वन नेशन बनेगा। सारे स्टेट्स के, सारे स्टेक होल्डर्स के स्ट्रेंथन होने से ही देश स्ट्रेंथन होगा। तो इसीलिए आइए हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे को ताकत दें, एक दूसरे को मजबूत करें, अपने डिमांड को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, अपने आइडेंटिटी को मजबूत करें और इस प्रकार से देश को और भारत माता को मजबूत करें। धन्यवाद, आप सबने ये मौका दिया, आपके पास आने का बहुत आपसे प्यार मिला, बहुत आपका स्वागत मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से पार्टनरशिप में आगे बढ़ने का पूरा विश्वास करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Likewise, the executive meeting of NFNS will be conducted on Sunday. Later, the cultural program was also shown at the end of the program. Reported by Prabir from Agartala, Chinikhorang.